Hello everyone, welcome to IES Master Channel. So for GATE 2023 result has also been already has been declared, and it's always be a dream to be the topper, to be top 5 rank. It is always dream for each and every student. And today we have along with us Deepak, who has secured second rank in GATE in civil engineering department. So let us welcome him and learn from him that during this his journey, what are the things, what are the hindrances he has faced, and how he has mitigated, how he has managed and resolved those problems and hindrances. So hello Deepak, many Hello, sir. congratulations from IES Master family. And today we are here to interact with you, which will help our students, those who are preparing. So Thank once you, again, sir. congratulations Deepak. Thank you, sir. Thank you. सबसे पहले दीपक, ये जो सेकंड रैंक है, इट्स अ वेरी बिग रैंक ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि आपने मेहनत भी बहुत की होगी, बहुत सारी परेशानियां भी आपको आई होंगी. सो पहले मैं जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा. सर, मेरा नाम दीपक है। मैं जींद हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी बीटेक द नॉर्थ कैबिन यूनिवर्सिटी गुड़गांव से की है। मैं इन 2019 I have passed out my BTech. Since ओके. then I was preparing for GATE and engineering services. अच्छा, जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इस जर्नी में जो भी आपको कुछ ऐसे 2-3 हिंड्रेंसेस या बड़ा कोई ऐसा इवेंट जो आपको सेटबैक मिला हो, और जब आपको लगा हो शायद कि आपको ये प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ऐसे कोई मोमेंट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं. Sir, like last year, I have given the engineering services interview, but I could not make it to the final list. So that time I thought that just leave the all and start something else, like in a private job or maybe business. So that was the biggest setback I have faced. But मैंने अपने आप को संभाला और फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी. Acha, what was the main motivation behind that? Once you got the setback, once you were thinking that after not been selected after the interview of engineering services. So what was the main motivation? Sir, the main motivation was to achieve something in life and to get a good government job that I can impact the lives of other people also, to serve the country and the nation. Okay, but along with the ES, I think now that your main goal when you started your preparation, your main goal was engineering services, right? Yeah. Main goal So, was engineering services. so how it became like you now you are a second topper in GATE. So can you just connect between these two? I said the preparation of the both exams was just same. Like if you prepare for engineering services, the GATE part is automatically prepared. Just you have to practice some more questions, like what was asked in the GATE examination. लाइक प्रिपरेशन तो दोनों की सेम है, तो आप गेट भी लिख सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. तो बस लास्ट में 1-2 मंथ्स आप गेट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा, तो हो जाता है सर. ओके, एक्चुअली दैट इज अ जेन्युइन, वेरी जेन्युइन आंसर. हम भी ये स्टूडेंट्स को बताते हैं, दोस्त स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, उनके लिए एक्चुअली में गेट लिखना आसान होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अपने में एक कंप्लीट सिलेबस है, और Yes. गेट उसके सबसेट से आ जाता है. ओनली द थिंग इज दैट कि अगर आप गेट को भी लिखना चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो सिलेबस का कवरेज ईएस का होना चाहिए, बट क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व करते समय थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज आपको गेट के ओरिएंटेड कर लेना चाहिए अलॉन्ग विद द Yes. ईएस. सो Yes, आपका sir. अभी नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो क्या है? सर अभी टारगेट सर अभी पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करेंगे मैं, और सर फिर लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा सर, जब तक क्वालिफाई या अच्छी रैंक नहीं आ जाती उसमें भी. अच्छा, दैट्स गुड. सो आप एक और बात हमें बताएं कि ये जो आपने जर्नी की है प्रिपरेशन वाली, एक तो चलिए आपका सेटबैक आपको लगा कि एक बार इंटरव्यू से वापस आ गए, लेकिन इस प्रिपरेशन में उस सेटबैक के अलावा और कोई डिफिकल्टीज आपको लगा, ऐसा फेस किया हो आपने? सर सोशल मीडिया में
या तो शायद स्टार्टिंग के पीरियड में जो बच्चे फेस करते हैं, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तैयारी करने के लिए, उस समय क्या होता है कि कंटेंट धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, और जब कंटेंट बहुत सारा हो जाता है तो वो जाके फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है कि मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं सही से, या मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं सही से। इन सब चीजों को आपने कैसे हैंडल किया फिर? सर शुरू में तो सबके साथ डिफ़िकल्टी होती है एकदम से, सर कॉलेज से प्रिपरेशन में शिफ्ट होते हैं जब, तो हमें पूरा लाइक सिविल इंजीनियरिंग फोर चारों साल का सब सिलेबस एक साथ पढ़ना पड़ता है, तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो शायद मैं हर रोज़ रिवीजन पे फोकस करता था, कंटिन्यूस रिवीजन। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक कोई अपना टास्क पेंडिंग मत छोड़ो, कि अगर कब एक्यूमुलेट होता रहेगा लास्ट तक आते आते फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं या फिर रिवीजन करनी है तो साथ साथ चलेंगे तो जितना अच्छा रहेगा। फिर लास्ट के टाइम में सर लाइक रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज वाज ओनली देयर, सो लाइक अच्छा, एक जरा स्पेसिफिक एक मुझे आंसर चाहिए था कि आपके इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपका रिवीजन वाला पार्ट है, और जो आपका मेन कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं, और जो आपका टेस्ट सीरीज है, ये तीन चीज है जो बच्चा कोई भी बच्चे जो है वो प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। तो आप एक कुछ ऐसा बता सकते हैं कि आपने रिवीजन कब स्टार्ट कर दिया होगा, और कैसे कैसे आपने रिवीजन को बढ़ाया होगा, और टेस्ट सीरीज आपने कब स्टार्ट किया होगा? सर जब इनिशियली मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स हो गए थे पढ़ने, तो सर मैंने फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। लाइक दिन में अगर मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ तो 2 से 3 घंटे मैं हर रोज़ रिवाइज़ करता था। और रिवीजन का सर ये है कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है और बोरिंग काम भी है। बिल्कुल। तो लाइक मैं उसको बिल्कुल शुरू में ही कर लेता था कि अगर दिन की शुरुआत है तो शुरुआती रिवीजन से करो, 1 डेढ़ घंटा रिवीजन शुरुआत में कर लिया। उसके बाद सर जो नॉर्मल अपना नया सब्जेक्ट है वो पढ़ लो। सर उसके बाद फिर लाइक इसमें क्वेश्चंस करने से पहले फिर रिवीजन कर लो, फिर बाद में जो हमने पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। सर फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। अगर 2-3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीटेड है, अच्छा रिवीजन हो चुकी है, तो आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। और फिर सर लास्ट में तो फुल टेस्ट देने ही होते हैं सर। अच्छा, आप जब टेस्ट सीरीज आप लिखते हैं, तो टेस्ट सीरीज के बाद अपने आप को आप कैसे इवैल्यूएट करते थे, और वहां से जो प्रॉब्लम्स हुए या उसको देखते कैसे थे, और उसको फिर एनालाइज करने के बाद उसको ठीक कैसे करते थे आप? सर लाइक शुरुआत में तो सर टेस्ट सीरीज जब आदमी लिखता है तो गलतियां बहुत होती हैं, नंबर भी नहीं आते, बिल्कुल। फिर डिमोटिवेशन भी आता है। बिल्कुल। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है अपनी, बल्कि लाइक उनसे सीखना ही है। टेस्ट एक सीखने के लिए बना है कि हम अपना आप को जज कर सकें कि हमने जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यस। तो सर जब मैं टेस्ट लिखता था तो सर एक 50% क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, लाइक 50% गलत हो गए या मेरे को नहीं आते, तो मैं उनके पीछे का रीज़न देखता था, क्या रीज़न है, कैलकुलेशन गलती हुई है, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता, या फिर थ्योरी मिसिंग है किसी पार्ट की, या फिर नया कॉन्सेप्ट है कोई, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, लाइक वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर मैं एक अलग से नोटबुक बना के उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेता था अलग अलग में। मैंने 4 सेक्शन बना रखे थे, लाइक एक सेक्शन हो गया मिस्टेक्स का, एक सेक्शन हो गया न्यू थ्योरी का, और एक सेक्शन हो गया सर लाइक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाइक पूछे जाते हैं हर बार, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो गए। तो सर फिर मैं ऐसे रिवाइज करता था जब रिवीजन करने बैठता लास्ट में, तो मैं इन सेक्शंस को ज़रूर देख के जाता था कि अगले टेस्ट में मैं ये गलतियाँ ना करूँ और इम्प्रूवमेंट ही हो जाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है अभी तक का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका स्टेटमेंट बताऊं, या किसी भी बच्चे को जो टेस्ट सीरीज लिखता है, इतना स्पेसिफिक बताया आपने। वेरी आई एम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट, आई एम मेनी मेनी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि जी आप टेस्ट सीरीज को इस तरह से एनालाइज करते थे, 4 कैटेगरी बना के स्पेशली, और उसमें जो आपने नया नहीं देखा है, या जो थ्योरी हो सकता है आपने ओवरलुक कर दिया हो, उसको आप मेंशन करते थे, और along with that other 3 sections you are having। अच्छा, आप टेस्ट सीरीज जब आपने लिखा था, स्पेशली आईएएस मास्टर का, तो उसमें आपने हाउ डिड यू फाइंड दैट, कि कैसा लग रहा था? व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर राइटिंग दोस टेस्ट सीरीज? सर लाइक मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए गेट के, तो लाइक मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था कि गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं जो लगाई आईएएस मास्टर की थी, तो क्वेश्चंस वर लाइक वन लेवल अबव ऑफ गेट, सो लाइक दैट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर एस्पिरेंट कि गेट कभी पूछ नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। लाइक
अब 2023 में पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। सो टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की है कि लाइक एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम गेट के तो कर ही सकते हैं, आराम से अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं गेट में। बिल्कुल बिल्कुल। सो और एक अलग सा सवाल है टेस्ट सीरीज के अलावा। आपने कहा रिवीजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब रिवीजन एक स्टूडेंट, मुझे लगता है आपने भी शायद काउंट नहीं किया होगा, लेकिन करीब मुझे नहीं लगता है कि 4 या 5 बार से कम आपने रिवीजन किया होगा। इज इट करेक्ट? यस लाइक काउंटिंग तो नहीं है, मैंने शॉर्ट नोट्स इतनी बार पढ़ लिए थे पता ही नहीं चला। अच्छा, आई विल कम टू दैट नोट्स पार्ट आल्सो, बट इस रिवीजन में और थोड़ा स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि अब यस, रिवीजन स्टार्टिंग का जो पहला रिवीजन है वो ज्यादा टफ है या आगे के रिवीजन टफ है, इसके बारे में बता पाएंगे क्या? स्टार्टिंग वाला तो होता ही है टफ, जो नेक्स्ट वाले वो बोरिंग होते रहते हैं बहुत ज्यादा। कि जो नया टॉपिक पढ़ने में तो इंटरेस्ट बनता है, लाइक रिवीजन वही चीज बार बार पढ़ना, उसको रिटेन रखना, लाइक बोरिंग पार्ट हो जाता है। रिवीजन ऑफ कोर्स बोरिंग तो होता है, और रिवीजन बोरिंग है लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। पर जब नोट्स बनाने की बात आती है तो आपने क्या लॉन्ग नोट्स बनाए थे या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और अगर शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो किन बातों का आपने ध्यान रखा था किसी सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बनाते समय? सर शुरुआत में तो सर सभी लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं, लाइक जो भी पढ़ना है हमें पढ़ाना है, पढ़ाया जा रहा है जो भी है, तो लॉन्ग नोट्स तो बनते ही बनते हैं सर। पर उनको लाइक आल रिवीजन करते हुए सर पूरी नोट्स को देखना लाइक इम्पॉसिबल हो जाता है। 14-15 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। तो सर मैंने दो नोटबुक, लाइक छोटी छोटी नोटबुक में जब शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लाइक उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट थ्योरी लिखी थी सभी सब्जेक्ट्स की। लाइक अपने फ्री टाइम, लग जिस टाइम मेरे को मन नहीं करता पढ़ने का, तो मैं उस टाइम शॉर्ट नोट्स बना लेता, लाइक बड़े नोट्स में से कॉपी करना ही होता था। अच्छा, आपने जैसा बताया है कि करीब मुझे लगता है आप 8 से 10 घंटा पढ़ लिया करते थे, इजंट इट? यस बाकी टाइम आप रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करते थे? सर, मैं लाइक ब्रेक्स बहुत लेता था बीच बीच में, लाइक 2-2.5 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, कोई लाइक सॉन्ग सुन लिया, ऐसा कोई टीवी सीरीज देख ली, लाइक छोटा सा एपिसोड देख लिया कोई, लाइक हाफ एन आवर का। और सर लाइक मैं पूरे साल में 3-4 ट्रिप्स ले लेता था, लाइक आउट स्टेशन ट्रिप्स फॉर 3-4 डेज फॉर रिफ्रेशमेंट ऑल। ओके। पर कभी ऐसा नहीं हो गया कि मैंने रिफ्रेशमेंट स्टार्ट की और मैं उधर ही ड्राइव हो गया? ये भी बच्चों के साथ होता है। तो अभी मान लो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया, अब एक के बाद दूसरे में इंटरेस्ट आता है, या फिर सीरीज का अगर पहला सेशन देख लिया तो पता चला दूसरा भी अभी देख लो, तीसरा भी अभी देख लो, तो टाइम का वो टाइम पार होता रहता है, टाइम चला जाता है, टाइम पास होता रहता है। तो आपने रेस्ट्रिक्ट कैसे किया कि मुझे बस इतना ही देखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सेल्फ लाइक रिस्ट्रिक्ट। ये सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खो जाओगे वरना तो उसी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में। तो उसके लिए सर मैं एक स्क्रीन टाइम लगा के रखता था अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे, कि लाइक हाफ एन आवर ही देखूंगा मैं जो भी देखूंगा, उसके बाद अपने आप ही वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस पार्ट को, या फिर बंद हो जाएगा वो। तो सर लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर ये। सो मैं भी सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स रिफ्रेशमेंट जरूरी है, हर कोई कहता है, और ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है। पर आपको ये अपना गोल हमेशा देखते रहना चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि अगर मैंने 1 घंटा या आधे घंटे के लिए अपने आप को रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम दिया है, देन वी हैव टू स्टॉप इट राइट देयर। तो दीपक, हमें ये जानना है कि अभी बच्चे जब प्रिपरेशन करते रहते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि शायद मैंने ये कंटेंट नहीं पढ़ा है, बाकी लोगों ने पढ़ लिया होगा, शायद मैंने ये सब्जेक्ट कम पढ़ा है, बाकी लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया होगा। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला सिनेरियो है, ये फोबिया है, ये कैसे आपने इसको ठीक किया? लाइक सर ये तो सभी को लगता है कि सर जो मैंने कंटेंट पढ़ा है वो कम है, या फिर किसी एंगल से कम अधूरा रह गया है, कि और लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, मैंने सिंगल रिसोर्स फॉलो किया है। तो सर हमें इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे रखना है। लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज से भी मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, कि हमें के एग्जाम की नीड समझनी पड़ती है कि क्या एग्जाम मांगता है। तो लाइक सिंगल रिसोर्सेज सफिशिएंट होता है सर पढ़ने के ओके। लिए। अच्छा, पर कंटेंट तो बहुत सारा ओवरफ्लोड रहता है। इस ओवरफ्लोड कंटेंट में अभी जितना भी कंटेंट है उसमें आपने चीजों को ऑप्टिमाइज कैसे किया? मतलब क्या आपने क्या ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा कुछ रखा था जिससे आपने चीजों को ऑप्टिमाइज किया कि हाँ मुझे यही इतना पे पढ़ना है? हाउ यू हैव डिसाइडेड दैट वन? सर लाइक अगर आप एक स्टूडेंट कोचिंग लेता है, जो जिसको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो लाइक मोर देन सफिशिएंट होता है, उसके साथ लाइक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि मैं उस टाइप फोकस हो जाऊँ अपना, लाइक ट्रैक पे फोकस हो जाऊँ, और से लाइक फिर लास्ट में तो टेस्ट सीरीज लिखनी होती है कि सब आइडिया लग जाता है सर टोटली क्या एग्जाम में पूछा बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। क्या पढ़ा है मैंने। ये मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़े, एक सटीक करेक्ट कंटेंट को आप थॉरोली फॉलो करें। इधर उधर ज्यादा डिविएट करने से हो सकता है आपके प्रिपरेशन में बहुत परेशानी आ जाएंगी। और थॉरो फॉलो करने से एक बेनिफिट रहता है कि आप ज्यादा डिविएट नहीं होंगे और आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, इजंट इट? अच्छा, यस आपसे एक सर। और बात जानना चाहूंगा मैं कि आपने आपने पढ़ाई किस कॉलेज से की है? सर द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव। गुड़गांव। आप जिस कॉलेज से हैं, बहुत सारे बच्चों को, आई होप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे आके कहते हैं कि सर हमने यहाँ से पढ़ा है, वहां से पढ़ा है, तो क्या मैं अचीव कर सकता हूँ? नाउ दीपक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु आर, दोज हु हैव स्टडीड फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेजेस। इट इज नॉट द बैरियर। कोई किसी कॉलेज से भी हो सकता है। वंस यू आर डिटरमाइंड, you can take an example as a Deepak and you can do whatever you want to achieve. You can achieve it. Isn't it, Deepak? यस सर। सर कॉलेज का मेरे हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट है आपकी प्रिपरेशन में। लाइक बेनिफिट हो सकता है कि आपका अच्छे कॉलेज से हैं तो आपका बेनिफिट हो सकता है, पर ये लाइक वो नहीं है कि होगा ही नहीं। तो होगा लाइक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स फॉलो करेंगे, राइट ट्रैक पे रहेंगे, तो बिल्कुल होगा सर, टॉप रैंक भी आएगी आराम से। बिल्कुल। तो आपको बीच में कभी स्टार्टिंग करते समय आपने कभी सोचा था कि आप ये सेकंड रैंक में आएंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि सेकंड रैंक में आऊँगा। लाइक मेरे को था कि मतलब अच्छा रैंक आएगा तो मैं अच्छी जगह लाइक जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लाइक सेकंड रैंक वाज नॉट व्हाट आई थिंक। मैं अभी फिर से बच्चों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। ये जो दीपक ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, अगर किसी ने प्लान भी नहीं किया है टॉप रैंक के लिए, पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्लानिंग करके और उसको डिसिप्लिन वे में अगर फॉलो कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप एक अच्छे जगह पर, अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैंने सोचा बट आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पाथ। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट द पाथ विच यू आर फॉलोइंग। आपकी प्लान कैसी है, आपका स्ट्रेटेजी कैसा है, और साथ में आप जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसको क्या डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं। ये दीपक के इस स्टेटमेंट से हमें ये, आई जस्ट वांट टू गिव द मैसेज टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और बात आपसे पूछनी थी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय क्या है, बहुत सारे बच्चे कैटेगराइज करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को कि ये सब सब्जेक्ट्स का मेरा फेवरेट है, मैं इसको अच्छा ज्यादा करूंगा और मैं प्रायोरिटी देता हूं इनको पहले, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा। आपने कुछ ऐसा प्रायोरिटाइज कर रखा था, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था क्या? सर जब मैं इनिशियल पढ़ रहा था सब्जेक्ट्स को तो सर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैंने सबको इक्वली टाइम दे, इक्वली वेटेज दी थी। पर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो लाइक जो हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। लाइक सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सर मैंने इन 5-6 सब्जेक्ट एंड लाइक मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, इनको एक कैटेगरी में रखा था। और लाइक सर जो कम वेटेज के उनको दूसरी कैटेगरी में रखा था। थर्ड कैटेगरी भी थी लाइक जिसमें से कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक रेलवे, एयरपोर्ट हो गई, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स। तो सर मैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखता था, उनकी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ज़्यादा टेस्ट देना, और रिवीजन भी उनको बार बार ज़्यादा करता था मैं। लाइक सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल। बड़े हैं। पर ये जो स्ट्रेटेजी है दीपक, आई होप कि मुझे लगता है आप एक बार क्लियर भी कर दें कि ये जो स्ट्रेटेजी है दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू गेट, क्योंकि अगर ये यस स्ट्रेटेजी आप शायद ईएस के लिए अपनाएंगे, विल इट बी हेल्पफुल? नो सर, नॉट, डेफिनेटली नॉट हेल्पफुल। लाइक इट वाज लाइक जब लास्ट में गेट आने वाला था 2 महीने पहले मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तो सर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इक्वल वेटेज है सबकी, बिल्कुल। इसमें कोई अच्छा, डिफरेंस नहीं यस, इस बार ईएस और गेट दोनों साथ में था, तो आपको ऐसा नहीं लगा पहले कि ईएस से पहले गेट का, ईएस का एग्जाम के पहले गेट का एग्जाम है, शायद मैं कहीं फोकस, तो मेरा गोल तो ईएस है, गेट ड्रॉप कर देता हूँ, ईएस को ज्यादा फोकस करता हूँ? सर। लाइक ड्रॉप करने का तो बिल्कुल भी मन में ही नहीं था कि लाइक दोनों एग्जाम हो सकते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस है ही नहीं। लाइक थ्योरी मतलब सिलेबस तो लगभग सेम, लाइक 99% सिलेबस सेम है सर। अगर ये इसकी तैयारी कर रहे हैं तो गेट तो अपने आप हो ही जाएगा सर। तो लाइक मैं सिर्फ
लाइक पेपर दे के आया था सर गेट का, और लाइक अच्छा हो गया। ओके दीपक, सो मुझे लगता है अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आया कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो गेट के लिए जब आपने एग्जाम लिखा तो जो लेंदी प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्वेंशनल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने बनाया था? यस सर, कन्वेंशनल क्वेश्चन सर, और वो लाइक कितना, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो कितना हेल्पफुल रहा आपके एग्जाम के लिए? सर लाइक मैं कहूँगा सर, फॉर 30-40% हेल्प किया सर कन्वेंशनल क्वेश्चन ने, लाइक स्कोर को मेरा बूस्ट अप करने के लिए। कि सर लाइक जो डिज़ाइन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पेपर वन के सब्जेक्ट्स होते हैं सर, उनमें तो सर बनाने ही बनाने पड़ते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन। उनके बिना आपको सर सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। लाइक अगर आप आरसीसी का एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाने लगेंगे सर, पोर्टल प्रोविजंस अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप सोल्व करते हैं तो एक चीज़ को बार बार करेंगे तो लाइक ऑटोमेटिकली रिमाइंड आते रहते हैं, याद होते रहते हैं। और सर लाइक कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहे हैं सर गेट की प्रिपरेशन में भी। बहुत धन्यवाद दीपक। पर अभी इस इंटरेक्शन को एंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा आपसे मैं, कि जो आपके कॉलेज के जूनियर्स होंगे या जो भी और भी कॉलेज के जूनियर्स जो आपके कांटेक्ट में होंगे, या जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट राइट दे हैव स्टार्टेड, उनके लिए आप खास क्या बताना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर जूनियर्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि लाइक अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्ट रखो, कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि मैं जो कर रहा हूँ लाइक सही कर रहा हूँ, और अब कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन में। ये फेलियर्स तो आते जाते रहते हैं, बट अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो लाइक कभी ना कभी तो हो ही जाएगा आखिरी में। ओके, मतलब यू वांट टू से दैट कि अगर आपने गोल सेट किया है और आप प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, then the day will come where you will achieve your goal, isn't it? यस डेफिनेटली सर। So thank you very much, Deepak. Nice to meet you, and many congratulations once again from ICE Master family. And we wish you for your best career. I hope you are interested in engineering services. For the engineering services also, we are wishing that ये एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाए, and we wish to meet again. यस सर, See you later. डेफिनेटली सर, श्योर सर। Thank you, Deepak. थैंक यू सर, थैंक यू सर।